Hi everyone, this is Alok and I am going to show you how I build Chai Tailwind. What is Chai Tailwind? I will try to keep the video short and explain my approach so that you can watch it. So what is Chai Tailwind? Chai Tailwind is a utility for CSS engine using JavaScript that watches our DOM and apply inline styles based on the classes. Okay, dynamically. So the page you are currently seeing is fully built by Chai classes which I have designed. I will show you how I have scaled it, how I have built it. Okay, so we have few color palettes, few typography like font sizes, font weights and font families, grid layout so that we can manage alignments, flexbox, responsive breakpoints. This is interesting one. I will show you how I built this. So if I resize my window here, you can see it's changed to tablet, and now if I keep making it short, it changes to mobile. So it is responsive based on the device. I will show you how I do this because in inline you can't do this. Okay, and later we have transform, basically scale hai, and border, XL, LG, MD, and a live playground where you can play with the classes that I have defined, and the supported classes are all written here for spacing, for text and font, display and position, flexbox, transform, sizing, borders and grids. Okay, let me jump into the code. You don't want to see this page code because this is built using the Chai Tailwind. So let's see how the Chai Tailwind is built. Okay, this is the project. This is the main entry file, main.js. What it is doing is document.add event listener. It is adding an event listener to the document. This script is added as a script in HTML file. Okay, so it waits for the HTML to be loaded and call this function init. What this is doing, okay, all elements dot for each process element. एक फंक्शन कॉल कर रहा है process element हर एक एलिमेंट के लिए, और ये हर एक एलिमेंट, all elements क्या है, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके क्लासेस में चाय डैश है. ओके, इफ देयर इज सच एन एलिमेंट विच डोंट हैव एनी क्लास विच स्टार्ट विथ क्लास डैश, इट इज नॉट गेटिंग इन दिस array. Okay, so what we are doing is, what is this document.body.style? So this is basically a workaround because when you wait for this event to occur, this event occur once the event happens. So जब वो HTML लोड हो जाता है तो कुछ देर के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए केवल वो HTML ही दिखता है, तो वो थोड़ा गंदा दिखता है. तो मैंने क्या किया है, बाय डिफ़ॉल्ट index.js में एक, लेट मी शो यू, index.js में एक स्टाइल अप्लाई कर दिया, बॉडी ओपेसिटी 0 और ट्रांजिशन ऐड कर दिया थोड़ा स्मूथ लगे. तो इफ़ यू कम हियर एंड रिफ्रेश, you will not see that raw HTML. It will be opacity 0 when all the CSS is applied, then it's opacity 1, and because of this transform this is looking thoda sa acha, good. Okay, now let's close it and get back to main.js. In main.js we are processing each element. What this function does, it takes an element, okay, and for now ignore it. I will explain is, this is for responsiveness. I will explain it. If the class start, basically what we are doing in this process element, we are checking each class of that element, and if it starts with chai, then we are continuing, otherwise we are returning, we are not processing it. If not start with chai, continue. Okay, उसके बाद हम चाय डैश प्रीफिक्स को रिमूव कर दे रहे हैं. उसके बाद हम इसको कॉल कर दे रहे हैं पार्स क्लास. ये पार्स क्लास क्या करता है, ये फंक्शन ये हमें दे देता है स्टाइल, क्लास नेम दे देते हैं हम उसको चाय प्रीफिक्स रिमूव करके, सच है चाय बीजी ब्लू. तो उसके पास केवल बीजी ब्लू जा रहा है और उस बीजी ब्लू के करस्पॉन्डिंग क्या स्टाइल अप्लाई करनी है, जैसे बीजी ब्लू के करस्पॉन्डिंग बैकग्राउंड कलर जो भी हेक्स कोड है वो, तो वो हमें ये पार्स क्लास रिटर्न कर रहा है. तो ये हमारा इंटेलिजेंट सिस्टम है, इसको हम देखते हैं अभी. ओके, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमें स्टाइल मिल जा रहा है, तो हम इस एलिमेंट के स्टाइल प्रॉपर्टी में वो सारे स्टाइल ऑब्जेक्ट डॉट असाइन उसमें ऐड कर दे रहे हैं. ओके, सो बिफोर शोइंग यू हाउ दिस पार्स क्लास वर्क, लेट मी शो यू हाउ वी आर हैंडलिंग ऑल द प्रीफिक्सेस लाइक टेक्स्ट ब्लू. Basically obviously chai will be there, chai text blue, chai text to XL,
चाय बीजी रेड, you got it. So how we are handling this prefixes bg, border, text. Okay, let me show you. I will go to my utility and registry. This is where you will see what we are handling, what classes we are handling, prefixes we are handling after chai dash. You can see here bg, text, z index, z for z index, w, h, हाइट, ये विथ हो गया, हाइट हो गया, टॉप बॉटम, आई मीन टॉप 0, टॉप 2, ऐसे वो सब हैंडल कर रहे हैं. राइट, जस्टिफाई, फ्लेक्स के लिए हो गया ना, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई जो भी वैल्यूज़ होती हैं, आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स. ओके, बॉर्डर वी आर हैंडलिंग. आई विल शो यू हाउ इंटरेस्टिंग दिस बॉर्डर इज़, बिकॉज बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, ये सब भी हम हैंडल कर रहे हैं इसमें. तो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा रहे और आप देख सकें. बेसिकली अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो कोई देखता नहीं भी. ओके, एंड दिस फॉन्ट हैंडलर, what font, let's just explore it. What font handler is doing? If font after chai dash font is matched, this handler is handling this class. Basically it is responsible for returning the styles. How? Okay, let's see. It gets parts. What this part is, now it will make sense if I go to main. Okay, let me see you parse class. Parse class is getting the class name after removing the prefix chai dash. Okay, it is splitting it based on dash. Okay, and it's basically parts become an array where there can be values, one value, or length can be 1, 2, 3, जो भी हो. For now ignore this because this is for responsiveness. We will see it. I will explain how I reach there. And after this what we are doing is we are checking क्या स्टैटिक यूटिलिटीज़ में ये क्लास नेम प्रेजेंट है. स्टैटिक यूटिलिटीज़ एक ऑब्जेक्ट है, अभी दिखाता हूँ. अगर उसमें ये प्रेजेंट है तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं. क्या रिटर्न कर दे रहे हैं हम स्टाइल में तो दे रहे हैं. स्टैटिक यूटिलिटीज़ में इस क्लास के नेम पे जो भी पड़ा है. पहले मैं आपको स्टैटिक यूटिलिटीज़ दिखाता हूँ. दिस इज़ डिफाइंड इन कॉन्फिग. In config we have basically type of hard coded data which we can't make dynamic. For example, chai block, chai inline, chai flex, chai grid. What we can do it dynamically. So this has to be sort of hard coded. This was not the fun part. The fun part will begin where we handle dynamic values. Okay, so you can take a glance what there is. I mean we can make it dynamic, but it will obviously not make sense for these two values only, so I keep there in static. Okay, and what this registry is, man, this is I am going to show you how this is highly scalable, highly customizable. Okay, let me go to the parse class function. ओके, इट इज़ चेकिंग क्या स्टैटिक यूटिलिटीज़ में ये क्लास प्रेजेंट है. तो स्टैटिक यूटिलिटीज़ में अगर ब्लॉक है, जैसे चाय ब्लॉक, चाय तो चाय डैश हट ही गया, अब ब्लॉक है तो हम सीधा ये रिटर्न कर दे रहे हैं डिस्प्ले ब्लॉक. ये हमारी स्टाइल यहाँ से सीधा चली जा रही है. ये तो सॉर्ट ऑफ हार्ड कोडेड हो गया. ठीक है, अगर स्टैटिक यूटिलिटी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, इफ़ नॉट है तो हम प्रीफिक्स निकाल रहे हैं. प्रीफिक्स क्या है, जैसे चाय बॉर्डर बॉटम 2, तो यहाँ पे चाय हटाने के बाद ही ये क्लास नेम आया है, तो बॉर्डर बॉटम 2 आया है, तो वहाँ से हम प्रीफिक्स निकाल रहे हैं. प्रीफिक्स और वैल्यू, यहाँ पे 2 वैल्यू है और चाय बॉटम जो है वो एक प्रीफिक्स है. बीजी ब्लू है तो फिर बीजी एक प्रीफिक्स है, ब्लू एक वैल्यू है. ओके, तो हाउ वी आर गेटिंग दिस प्रीफिक्स फ्रॉम ए फंक्शन कॉल्ड गेट प्रीफिक्स. व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग, इट रिटर्न्स द लॉन्गेस्ट मैच फर्स्ट. जैसे अगर मैक्स विथ 2XL आया या मैक्स विथ फुल आया, तो पहले ये मैक्स विथ, ये आप लॉजिक देख सकते हैं लूप से, पहले ये मैक्स विथ को चेक करेगा क्या वो किसी यूटिलिटीज़ में है. वी आर नॉट चेकिंग हियर स्टैटिक यूटिलिटीज़ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी चेक्ड इट. इफ देयर वाज प्रेजेंट वी नेवर रीच्ड हियर, वी आर रिटर्निंग इट. ओके, वी आर चेकिंग क्या यूटिलिटीज़ में ये क्लास प्रेजेंट है. अगर नहीं है तो हम उसकी लेंथ को छोटा कर रहे हैं, तो केवल हम मैक्स चेक करेंगे. अगर मैक्स विथ मैच कर जा रहा है तो फिर हम आगे जा ही नहीं रहे हैं, हम रिटर्न कर ले रहे हैं, यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं उसको. ओके, सो बेसिकली वी गेट प्रीफिक्स हियर. इफ़ इट इज चाय बीजी ब्लू, चाय तो पहले से हट गया, अब बीजी आ गया प्रीफिक्स में. ओके,
Now what we are doing, we are getting the style by calling utilities prefix and calling it means it has to be a function. Let me show you utilities. This is our registry file. This is where all the things are defined we are handling, like bg. What prefixes we are handling? bg, text, many of them are overloaded. For example, text is overloaded. टेक्स्ट से आप उसका फॉन्ट सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू एक्सेल. टेक्स्ट से उसका कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट से उसका अलाइनमेंट, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट राइट, ये हो सकता है. ओके, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है. अभी मैं दिखाता हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं कहाँ पे हूँ, हाँ, यूटिलिटीज़ में से हम प्रीफिक्स से एक हमें फंक्शन मिल जा रहा है. जैसे बीजी है तो बीजी हैंडलर मिल जा रहा है हमें. ठीक है, बीजी हैंडलर को हम कॉल कर रहे हैं. किसको? इसको हम पार्ट दे रहे हैं. बीजी हैंडलर को हम पार्ट्स दे रहे हैं. पार्ट्स क्या है? पार्ट्स यहाँ पे है. पार्ट्स जो है हम स्प्लिट करके, चाहे तो हट गया है, उसके बाद जो वैल्यूज़ बची हैं उनको हम एक एरे में स्प्लिट करके ले रहे हैं. ठीक है, तो बीजी इसको कैसे हैंडल कर रहा है, लेट्स सी. The easiest one is busy handler. So I am showing this is basically 2-3 line of code. We are retrieving the value from these parts. चाहे busy blue, चाहे पहले से remove, busy in 0th index, and we are getting blue in value, and we are returning background color because it is busy handler. It is responsible for background color, and it is returning the color value from a database, sort of database we are having in our config, which is color map. If it's blue, then this color gets returned. If this is black, you get it. Okay, by the way, this color is used in whole app, be it text color, border color, same. if मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ तो हर जगह वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं. This was busy handler, the easiest one. Let me show you the text handler because text is overloaded. Text to Excel भी हो सकता है, text blue भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो what our main is doing, it is doing nothing. It is just extracting the prefix and calling the handler with this parts. It is giving it the whole part after removing chai basically. Okay, so how text is handling it? It is getting these parts and it is retrieving the value from its पार्ट्स का 1th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, लाइक टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट ब्लू, तो सेंटर ब्लू, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो वैल्यू में आएगी. उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एक रिजॉल्वर बना ले रहे हैं. रिजॉल्वर क्यों? क्योंकि ये ओवरलोडेड है, तो हम फॉन्ट साइज़ भी हैंडल कर रहे हैं, टेक्स्ट अलाइन भी हैंडल कर रहे हैं और कलर भी हैंडल कर रहे हैं. सो इफ़ दिस वैल्यू मैचेज इन एनी ऑफ देयर सोर्सेज बेसिकली फॉन्ट साइज़ पे क्या क्या वैल्यूज़ अलाउड हैं, अगर उनमें से मैच हो रही हैं कोई भी वैल्यू तो हम वो रिटर्न कर दे रहे हैं. आगे फिर नहीं चेक करें, क्योंकि एक क्लास एक ही प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एक ही डोमेन में अलग अलग प्रॉपर्टी कर सकता है वो. जैसे टेक्स्ट टू एक्सेल में हम उसकी लाइन हाइट और टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ दोनों मैनेज कर सकते हैं. वो हमने किया है, या फिर वो नहीं किया तो एग्जैक्ट सिमिलर चीज़ें की हैं, मैं दिखाऊँगा. ओके, तो व्हाट वी आर डूइंग, we are from resolver, we are getting the property which style is getting returned, font size. Okay, because it is responsible for font size, it is responsible for text align. तो यहाँ से हम उसकी CSS प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, और जो वैल्यूज़ हैं वो हम सोर्स क्या है, हर एक प्रॉपर्टी की अपना एक सोर्स है जो हम अपना डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं. तो फॉन्ट साइज़ के लिए हम अपना एक स्केल बनाएं, केवल ये वैल्यूज़ अलाउड हैं. फॉन्ट LG, फॉन्ट 2XL, फॉन्ट 3XL. इफ़ यू गिव मी फॉन्ट 7XL, इट विल नॉट बी अप्लाइड. ओके, एंड टेक्स्ट अलाइन में क्या क्या, हम टेक्स्ट अलाइन में लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई. फॉर नाउ इट्स बोथ की एंड वैल्यू आर सेम, बट इफ़ आई वांट टू ऐड हियर टेक्स्ट अलाइन बीच में कुछ भी, तो मैं यहाँ पे अपना कस्टम ऐड कर सकता हूँ. बेसिकली यहाँ पे तो ऑफिशियल जो CSS का है वही रहना चाहिए, और यहाँ पे मैं अपना क्लास जो नेम है, यूटिलिटी है, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ. दैट्स व्हाई आई हैव रिटर्न इट अलग से. ओके, सो यू कैन सी दिस टेक्स्ट हैंडलर विद इन दिस फ्यू लाइन ऑफ कोड, इट इज़ हैंडलिंग ऑल दिस. इट इज़ overloaded. Okay, let me show you other such handlers so that you can get idea how I am handling this. Next I am going to move over
mutation observer and the responsiveness. So before that I am going to show you one more handler. Okay, in registry which handler should you show? Okay, border I am saying. इसमें मैं बहुत टाइम दिया था, मतलब अच्छा टाइम लगा था. So in border we are handling all this: border top, border bottom, border left, border right, border x. x मतलब ये दो प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी. that was I was saying कि दो प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती हैं विद इन सेम डोमेन, and that's why we have keep this in an array, not as plain string. How this is happening all this? Okay, I am the builder of this chat tailwind, so I knows what comes, how many parts I will have in border, like border t to xl, border t जो भी हम वैल्यूज अलाउड कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम अपना लॉजिक लिखते हैं. यहाँ पे अगर पार्ट्स का लेंथ 3 है तो मुझे पता है कि पहले के दो जो हैं वो मेरे ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं और आखिरी वाला वैल्यू डिफाइन कर रहा है. सो प्रॉपर्टी जो है हम पहले दो पार्ट्स के एलिमेंट्स ले रहे हैं, एरे के एलिमेंट्स पहले दो, उनको ज्वाइन कर रहे हैं डैश से, उसके बाद मैच कर रहे हैं अपने इस प्रॉपर्टी विथ पे. अगर इससे बॉर्डर टी पे मैच हो रहा है तो ये वाली CSS प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और जो वैल्यूज़ है वो भी कहाँ से आएंगे? बॉर्डर विथ स्केल से, जो हमने अपना खुद का स्केल रखा है. 0 पे 0, 2 पे 2 पिक्सल, 4 पे 4 पिक्सल. डिफ़ॉल्ट अगर नहीं दे रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट 1 पिक्सल, केवल अगर चाहे बॉर्डर लिख दिया तो डिफ़ॉल्ट वो 1 पिक्सल होगा. ओके, this is, and if the only it is 2 parts, basically parts is of the length of parts array is 2, then what is happening? Property is part 0 and value is part का 1. then we have ये भी ओवरलोडेड है, आप देख सकते हैं. बॉर्डर विथ हो सकता है, फॉर एग्जांपल बॉर्डर विथ का स्केल हम देख लेते हैं. बॉर्डर 2 आप लिख सकते हैं चाहे बॉर्डर 2, चाहे राउंडेड, ये बॉर्डर रेडियस स्केल के लिए राउंडेड SM, राउंडेड 2XL. तो ये मैच कर रहा है, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी रिटर्न करेगा. बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, उन सब के लिए ये ओवरलोडेड है. इन 4 चीज़ों के लिए, कलर के लिए भी बॉर्डर ब्लू, बॉर्डर ग्रीन, तो ये सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं केवल इस बॉर्डर हैंडलर फंक्शन से. आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हैंडलर ये नहीं है, बस इतना ही है. ओके, and now let me go to the main file and explain the other important things. And because there are too many handlers, you can see in the code where it is in registry there are a lot of handlers: grid handler, flex handler, transform handler. I will not go into all, otherwise the video will be quite long. Now let's get back to the main.js. okay, now let's talk about responsiveness, how responsiveness is happening. If I go to my process element function, what this is doing, this is basically creating an object with base की है, और वो एक ऑब्जेक्ट है जो अभी एम्प्टी है. और हमारे ब्रेक पॉइंट्स में, लेट मी शो यू द ब्रेक पॉइंट्स. दिस इज ब्रेक पॉइंट्स विच इज डिफाइंड इन config SM, MD, LG. You can also handle Excel. This no code anywhere change will required, it will work perfectly fine. This is how I written it, all the code. ओके, सो वहाँ से वो सारे जो भी हमने डिफ़ाइन किया है वो इस ऑब्जेक्ट में बेस एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो गया, SM एम्प्टी ऑब्जेक्ट, वो बेसिकली वो इनिशलाइज हो जा रहा है. उसके बाद हम हर एक क्लास से अपना वो स्टाइल ले रहे हैं और ब्रेक पॉइंट ले रहे हैं. अगर ब्रेक पॉइंट नहीं है, फॉर एग्जांपल चाहे बॉर्डर ब्लू, तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट नहीं है तो वो बेस में जाएगा. बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे बेस ले रहे हैं, ठीक है. अदरवाइज़ वो हम उसको ब्रेक पॉइंट्स को अगर है तो उस हिसाब से अपडेट कर रहे हैं. ओके, सो वी आर कलेक्टिंग all these styles by categorizing them into base, MD, XL, whatever is defined in our breakpoint object. Okay, and we are assigning in this object, and after all the classes are processed of an element, we are applying the styles in a mobile first, tailwind style, in that style. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम बेस की स्टाइल को अप्लाई कर दे रहे हैं. बेस मतलब बिना किसी ब्रेक पॉइंट के जितने भी स्टाइल्स हैं वो अप्लाई हो जा रहे हैं. उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारी करंट विथ है वो जो हम ब्रेक पॉइंट्स की विथ है उससे ज़्यादा है या बराबर है, तो उस वाली स्टाइल को भी हम अप्लाई कर दे रहे हैं. अगर LG है तो SM वाला भी अप्लाई होगा और उसके बाद अप्लाई हो जाएगा आपका LG वाला भी.
ओके, तो ये है हमारा लॉजिक इसे क्या करने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। हाउ दिस इज ट्रिगरिंग व्हेन आई एम रिसाइजिंग विंडो, हाउ दिस इज ट्रिगरिंग, दिस इज ट्रिगरिंग वी हैव टू ऑप्शन। विंडो के रिसाइज होने पे हम लिसन कर सकते हैं, बट दिस इज़ टू मच बिकॉज विंडो थोड़ा सा भी रिसाइज हुआ वो इवेंट फायर होता जाएगा। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव यूज्ड मैच मीडिया। बेसिकली it returns media query and we can check whether it only fires when its true or false changes. Basically we pass in min width 1080 पिक्सल दे दिए। अगर अब वो विंडो की साइज़ अगर 1080 से कम होगी तब वो फायर होगा एक बार। अब कम हो गई, आप उसको कम में ही चला रहे हैं तो वो फायर नहीं होगा, फिर 1080 क्रॉस करेगा, फिर वहाँ पे वो फायर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी ब्रेक पॉइंट्स हैं उतने हम ये मीडिया क्वेरी लिसनर लगा दे रहे हैं, और जब भी ये वैल्यू चेंज हो रही हैं तो हम ऑल एलिमेंट्स को फिर से एक बार प्रोसेस कर ले रहे हैं। दैट्स वाई इट्स इज़ बिकमिंग रिस्पॉन्सिव एंड आल्सो इट डोंट हैव टू लिसन ऑल द रिसाइजेस ओनली व्हेन देयर इज़ अ मीनिंगफुल चेंज एट दैट ब्रेक पॉइंट, ओनली देन दिस इवेंट फायर्स। ओके, and now I have also handled mutation observer. Why this is required? Basically it check the classes live if any changes happens in the document की बॉडी में। यहाँ पे हम नीचे लगाए हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की बॉडी को, पूरी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर उसमें कोई चाइल्ड ऐड हो रहा है या उसका क्लास चेंज हो रहा है तो वो म्यूटेशन फायर होगा, वो हमें म्यूटेशंस देगा। हम चेक कर रहे हैं अगर कुछ ऐड या रिमूव हुआ है तो एडेड नोड्स पे हम ये बेसिकली उसको प्रोसेस कर दे रहे हैं। और हो सकता है जो नोड ऐड हुआ है उसके सब चाइल्ड हो, उनमें भी चाइल्ड क्लासेस हो, तो उसके लिए फिर से हमने क्वेरी सेलेक्टर ऑल करके उनको प्रोसेस कर दिया है। ओके, अगर एट्रीब्यूट चेंज हुआ है तो केवल हम जिस एलिमेंट का एट्रीब्यूट क्लास चेंज हुआ है, वी आर वॉचिंग ओनली क्लास एट्रीब्यूट, तो जिसका भी क्लास चेंज हुआ है केवल उस एलिमेंट को हम दोबारा प्रोसेस कर दे रहे हैं। दैट्स वाई इट्स गेटिंग अपडेटेड। लेट मी शो यू लाइव। दिस इज़ आवर पेज and if I go to this and chai busy जिंक की जगह हम इसको अगर पिंक कर दें, this is pink. If there was no mutation observer, this was not possible. Okay, let me refresh it. So what happened with this, if you let's say make a to-do app, so when you add a new to-do, the style will be applied based on the classes on that newly added item. Without mutation observer, it will not add the styles. That's why I have added it. Okay, you can play here. I have already shown this resizable. Okay, and you can play here like let's say chai bg pink. Okay, chai text red, white कर लेते हैं, white. Okay, border solid कर लेते हैं, chai border सॉलिड। अभी दिख नहीं रहा तो चाहे बॉर्डर की विड्थ बढ़ा लेते हैं, चाहे बॉर्डर 4। नाउ यू कैन सी, चाहे का बॉर्डर का कलर भी बदल सकते हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज ओवरलोडेड, बॉर्डर सॉलिड, बॉर्डर 4, ऑल दिस इज हैंडल्ड बाय बॉर्डर हैंडलर। सो दैट्स हाउ आई हैव डिजाइंड दिस होल चाय टेलविंड। इट इज़ हाईली स्केलेबल। ओके, आई फॉरगॉट टू ऐड द busy random. It will be fun. Let me add it. I will pause the video and add it and will show you. So basically to add a random color, we have to modify this our color map. This is our database, so we can have something like random and यहाँ पे हमें वो पास करना है कि हमें क्या देना है। बट द प्रॉब्लम इज़ अगर हम यहाँ पे फंक्शन देंगे तो हमें कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम सारे स्ट्रिंग दे रहे हैं, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। हमें हर जगह चेक करना पड़ेगा टाइप ऑफ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, अगर फंक्शन है तो कॉल करके हमें वैल्यू मिलेगी। सो देयर इज़ एन थिंग getters in JavaScript which we can use in a object. We will be using that. Okay, so I am exporting this const color map. Okay, let's rename it colors. Okay, कलर्स, तो ठीक है, हमारे सारे कलर्स आ गए। और यहाँ पे हम एक गेटर लगा देंगे, गेट रैंडम। ओके, एंड इनसाइड द गेट रैंडम, ओके, इट सजेस्ट ऑटो सजेस्ट। लेट मी सी इफ इट इज़ करेक्ट। कलर कीज ऑब्जेक्ट डॉट कीज,
कलर, कौन सी रैंडम की, ओके वाई की, वी विल यूज़ वैल्यूज़ डायरेक्टली ना, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ कलर, हमारे पास सारे हेक्स वैल्यूज़ आ गए। उसके बाद हम रैंडम कलर ले रहे हैं यहाँ पे, ये सही है। कलर कीज़ की लेंथ, ये कलर वैल्यूज़ नहीं, कलर्स इसको केवल कर लेते हैं, ऑल कलर्स, basically you know it's all naming, that it is auto suggesting. Let's see all this correct. Okay, it's all correct. Let me test it whether it is working or not. If I here write random, no, okay, it was working, but the problem was that we were checking the deployed link and making changes locally. So I am making changes again. Let me see where should I make change so that it can look good. Okay, here I am making changes. Get style done mainly on the heading, char text random. Now check this local server. Okay, now you can see the color of this text is random. After every refresh it is getting a new color. Okay, it's invisible because it gets matched with background. Now you can see we have implemented random, bg random, basically any color random. And what we have to do for all this? Nothing, just in our database color map we have this get random, a getter, and we are returning a random color from these predefined colors. We also can use a random hex generator, but you know. So this was how I build Chai Tailwind. Thank you for watching. Bye bye.